Good morning, everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 4, Executive, page number 78. In this chapter, we know about make a distinct between the parliamentary and the presidential executive. कि parliamentary executive में और presidential executive में क्या difference है? Understand the constitutional position of the President of India. And third is know the composition and functioning of the Council of Ministers and the importance of Prime Minister. Council of Minister and the importance of Prime Minister. Understand the importance and functioning of the administrative machinery. कि administrative machinery जो है किस तरीके से काम करती है. Now, what is an executive? Executive हम किसको कहते हैं? Simple language में Prime Minister and his cabinet is known as executive. Who is the in charge of the administration of your school? Who takes the important decision in a school or a university? In any organization, some office holders has to take decisions and implement those decisions. Means school, universities और हर ऑफिस के लिए कुछ certain जो है डिसीजंस लिए जाते हैं और उन डिसीजन को कौन लेता है. वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट. तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट लेती है या किसी ऑफिस का जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेता है. बट द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए बॉडी एट द टॉप that will take policy decisions or the big decisions and supervise and coordinate the routine administrative functioning. तो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा जो सबसे अपर बॉडी है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, वो अपने इंस्टीट्यूशन के लिए पॉलिसी मेक करते हैं और साथ ही जो भी बड़े डिसीजन हैं वो लेते हैं और सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करते हैं. You may have heard about the executive of big companies, banks or industrial units. Every formal group has a body of those who function as a chief administrator or the executives of that organization. Some office holders decided the policies and rules and regulations, and then some offices holders implement those decisions in actual day-to-day functioning of the organization. Means किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी बॉडी में, किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ सर्टन पीपल्स होते हैं जो उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है डिसीजन लेते हैं और फिर एक अदर ग्रुप होता है जो कि उनको इम्प्लीमेंट करता है डे टू डे फंक्शनिंग में. The word executive means a body of a persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice. तो मेनली एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है कि जो रूल्स और रेगुलेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, डे टू डे लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव. In the case of government also, one body may take policy decisions and decide about the rules and regulation, while the other one would be in charge of implementing those rules. The organ of government that primarily looks after the functioning of implementation and administration is called the executive. तो मीन्स ये है कि पार्लियामेंट है मेनली, जो कि हमारा लेजिस्लेचर है, वो रूल्स प्रिपेयर करता है. फिर उन रूल्स को जो इम्प्लीमेंट करता है वो है एग्जीक्यूटिव, और मेनली एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव. तो वो ये चीज़ डिसाइड करता है, सुनिश्चित करता है कि जो रूल्स प्रिपेयर किए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एक्चुअल लेवल पर. ये एग्जीक्यूटिव का ही ड्यूटी होती है. व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव के और अदर वर्क्स क्या हैं? एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द implementation of laws and policies adopted by the legislature. The executive is often involved in framing of policy. Mainly गवर्नमेंट के 3 organs होते हैं, legislature, executive and judiciary. तो जो लेजिस्लेचर है वो लास्ट प्रिपेयर करता है और एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करता है, उन पॉलिसीज को एक्चुअली फ्रेम करता है. द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव
वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऑफिशियल डेजिग्नेशन का मीनिंग है कि नेम अलग हो सकते हैं। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट्स व्हाइल अदर्स हैव द चांसलर। तो जो मेन अथॉरिटी है, बहुत सारी कंट्रीज में प्रेसिडेंट होते हैं या चांसलर। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, इट आल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, सिविल सर्वेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट आता है, तो सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं वो इतना वर्क की प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उनके साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी भी ये ड्यूटी होती है और उन सबको मिलाकर बनता है एग्जीक्यूटिव। saddled with the overall responsibility of government policy are together known as the political executive। तो मेनली एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स की है, आपने 9th-10th में रीड भी किया है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में अकाउंट होते हैं जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और परमानेंट क्यों कहा गया है कि टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो जो है अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। और पॉलिटिकल, what are the different type of executive? Every country may not have the same type of executive। different countries में different type के executives होती है। You may have heard about the president of the USA and the queen of the England, but the powers and the function of the president of USA are very different from the powers of the president of India। Similarly, the powers of the queen of England are different from the powers of the king of Bhutan। both India and France have the prime ministers, but their roles are different from each other। Why is this so? तो ऐसा क्यों है? To answer this question, we will briefly outline the nature of executive existing in some of these countries कि किस टाइप की एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है। The USA has a presidential system and executive powers are in the hands of the president। मीन्स वहाँ एक्चुअल हेड जो है प्रेसिडेंट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ पावर उनके हाथों में है। Canada has a parliamentary democracy with a constitutional monarchy where Queen Elizabeth II is the formal chief of state and the prime minister is the head of the government। तो जो क्वीन एलिजाबेथ हैं इंडियन प्रेसिडेंट के तरीके से फॉर्मल चीफ हैं और जो सारी की सारी पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ए पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और फ्रांस का सिस्टम बिल्कुल अलग है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मीन्स फ्रांस में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट तो करते हैं प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को, लेकिन उनको डिसमिस नहीं कर सकते, वो ड्यूटी जो है पार्लियामेंट की है। जापान हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट and the prime minister as the head of the government। Italy has the parliamentary system with the president as the formal head of the state and the prime minister as the head of the government। Russia has a semi-presidential system like the France where president is the head of state and the prime minister who is appointed by the president is the head of government। Germany has a parliamentary system in which president is ceremonial head of the state and the chancellor is the head of the government। तो जर्मनी में जो चांसलर हैं उनके पास होती है मेन पावर्स। In the presidential system, the president is the head of the state as well as the head of the government। और जब इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। तो जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो बहुत पावरफुल है, बोथ इन द थ्योरी एंड इन द प्रैक्टिस। मीन्स एक्चुअल बेसिस पर भी और थ्योरेटिकली भी। कंट्रीज विद सच ए सिस्टम इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशन इन लैटिन अमेरिका। और मोस्ट ऑफ कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड लैटिन अमेरिका, उनमें यही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ की सारी जो पावर्स हैं, एक्चुअल पावर्स और थ्योरेटिकल पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है मोस्ट पावरफुल है।
This is all for today.